and welcome to Visionary Women. I'm CA Shraddha Sanghi. I'm from Nagpur and I'm practicing here. It is my pleasure to introduce CA Harsh Rajani, sir, who has successfully completed 4 years in the profession, which is exemplifying adaptability and strategic vision. He began his career with a strong focus on taxation, gaining 2.5 years of hands-off experience before establishing his own firm. And Harsh Rajani and company specializing in taxation and startup consultancy. Recognizing that the finance was just one piece of the puzzle, he expanded his expertise into business strategy and franchising and leading the creation of Expandage Consultancy. His passion for fostering scalable growth further inspired him to establish Franchise IQ, a platform dedicated to transforming businesses into a successful franchise model. Through his ventures, Harsh continued to drive innovation, sustainability, and expansion, shaping the future of business and franchising in India. So I welcome Harsh on from a Visionary platform on Visionary Women platform. So sorry, so sorry for that. Good morning, everyone. Good morning. Very good morning. Thank you, Shraddha, for the introduction. Thank you, Manali. Thank you, Crispy, and the entire Visionary Women platform to provide me this opportunity to share my knowledge. Pleasure to have you, Harsh. Thank you. So let's move forward with this session. So yes, our topic is how chartered accountants empower franchisee success. So firstly, I would like to ask from the participants that anyone from here is doing any exceptional area of practice besides traditional practice, and I would like to know. That's where we are here to learn from you. Okay, so franchise consultation is one of such a modern area of practice where you can explore and share your knowledge with the client and gain edge in the practice. So let's move forward. So my first question is, does anyone from here know what franchising is? So it's I have one of my client who is having the brand known as Salado Cafe. Okay. So they are giving the franchisees to all over India. So I think it can be related to how to look after all the franchisees. Are they working within the standards they're decided by the parent company? Maybe something like that. Right, correct, Manali. So that is what how franchising works. Now I will first explain what franchising is. So basically, to start with, for everyone is comfortable with Hindi and English, right? Yes. Okay. So session will be a mix of Hindi and English. So franchising क्या होता है? So basically कि अगर एक company है, it is an expansion model for the business. We can say that expansion model. तो अभी आज एक कंपनी है, लेट्स से उनका एक जगह भी प्रेजेंस है, बट दे वांट टू एस्टैब्लिश देयर प्रेजेंस ऑल ओवर द नेशन, ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो इट इज अ ग्रोथ मॉडल जहां पे वो अपना जो ब्रांड नेम है, अपने जो प्रोसेसेस है, अपने बिजनेस का जो मॉडल है, ऑपरेशनल मॉडल, उनका लाइसेंस देते हैं दूसरी कंपनी को कि वो लोग वो सेम मॉडल रेप्लिकेट करके अपना बिजनेस एक्सपांड कर सकते हैं. सो दैट इज व्हाट फ्रेंचाइजिंग इज. नाउ व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग? देन फर्स्ट इज ब्रांड एंड बिजनेस मॉडल. तो आपका एक ब्रांड होना चाहिए, एस्टैब्लिश ब्रांड विच इज नोन बाय द पीपल. एक आपका बिजनेस मॉडल स्टैंडर्ड होना चाहिए. जैसे यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी आर सेकंड की एलिमेंट, कि आपका जो बिजनेस है उसमें यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. इट शुड बी रेप्लिकेबल, उसको रेप्लिकेट करने चाहिए लोग. फिर सपोर्ट एंड ट्रेनिंग, द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फ्रेंचाइजिंग, जहां पे फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी को सपोर्ट देता है, ट्रेनिंग देता है. दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू एंश्योर द कंसिस्टेंसी. कस्टमर सर्विस, वो सब एंश्योर करने के लिए इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. नाउ फाइनेंशियल पार्ट क्या रहता है? फीस एंड रॉयल्टीज आर वन ऑफ द फाइनेंशियल एलिमेंट एंड लीगल एग्रीमेंट. इन सब चीजों को बांध के कौन रखता है? तो द लीगल एग्रीमेंट बिटवीन फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजिंग. तो ये सारे की एलिमेंट्स है जो फ्रेंचाइजी सिस्टम में हमको ध्यान में रखने होते हैं एक बिजनेस में, जिनको अगर फ्रेंचाइजी में जाना है. नाउ सेकंड इज टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग अरेंजमेंट, इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग अरेंजमेंट्स कौन कौन से होते हैं.
जैसे प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी, तो अभी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी क्या होता है, जिसमें एक कंपनी जो है वो अपने दूसरे कंपनी को प्रोडक्ट सिर्फ बेचने का राइट्स देती है, पूरा बिजनेस मॉडल रेप्लिकेट नहीं होता है। यहाँ पे एक है बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजिंग, जो सबसे पॉपुलर फॉर्मेट है फ्रेंचाइजिंग का। उसका एग्जांपल है टी पोस्ट। जैसे आप लोग टी पोस्ट कई बार विजिट करते हैं, तो आपने सूरत में टी पोस्ट विजिट किया, अहमदाबाद में किया, राजकोट में किया, कहीं पे भी आपने टी पोस्ट विजिट किया, तो उनका जो इंटीरियर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर लुक आपको देता है। उनका जो सर्विस मेथड है, उनका जो मेन्यू है, वो सारा सेम रहता है। तो दैट इज बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजिंग, कि आप पूरा का पूरा जो आपका बिजनेस फॉर्मेट है उसको रेप्लिकेट करवाते हैं दूसरी जगह पे। अनलाइक दैट दिस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजिंग इज डिफरेंट। उसमें क्या है कि सिर्फ आप अपने प्रोडक्ट सेल करने का राइट देते हैं, सो दैट वी कैन से दैट डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूशनशिप, वो जो प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी है उसको डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूशनशिप भी बोलते हैं। फिर एक आता है मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजी। मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजी में क्या रहता है कि कई बार जो कंपनी है वो अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है उसको आउटसोर्स कर देते हैं। जैसे फॉर्मूला है वो उन्होंने डेवलप किया है, फॉर एग्जांपल कोका कोला। कोका कोला क्या करता है, तो कोका कोला का जो सिरप है वो सिरप वो लोग इन हाउस मैन्युफैक्चर करते हैं, बट उसके बाद जो उनका फाइनल प्रोडक्ट है जिसमें फीस ऐड होता है, काफी और सारी चीजें ऐड होती है, पैकेजिंग होता है, तो वो सब सारी चीजें वो लोग आउटसोर्स कर देते हैं। उसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइज। फिर एक है कन्वर्जन फ्रेंचाइज। इसका बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है ओयो। जैसे मैं आपको ओयो का बिजनेस मॉडल समझाता हूँ कैसा है। देयर वर मेनी इंडिपेंडेंट होटल्स, काफी सारे इंडिपेंडेंट होटल्स थे काफी सारे सिटीज में, जो लोग अपना बिजनेस रन कर रहे थे ऑलरेडी, बट दे वर रनिंग इनटू द ट्रेडिशनल मेथड्स। उनके वहां पे फुटफॉल नहीं था, उनको रिकॉग्निशन नहीं था। तो ओयो ने क्या किया, उन सारे होटल्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया और उनको कन्वर्ट कर दिया ओयो के फ्रेंचाइज में। जैसे ओयो ने उनको एक एसओपीस बना के दिए, एक बिजनेस मॉडल बना के दिया, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करने को कहा, तो रीब्रांडिंग किया उन सब का। तो दैट इज कन्वर्जन फ्रेंचाइज। नाउ नेक्स्ट इज पिगीबैक फ्रेंचाइज। अब पिगीबैक फ्रेंचाइज क्या होता है, तो पिगीबैक फ्रेंचाइज में कैसा है कि इट इज अ लो कॉस्ट मॉडल, जहां पे कई बार ऐसा होता है कि जो नई कंपनीज आई है तो उनको रियल एस्टेट में उतना ज्यादा इन्वेस्ट करना नहीं होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है, वो एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ में ही जो उनके वहां पे जगह है, उनके वहां पे रिसोर्सेस है, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो वो करके वो लोग उनके वहां फ्रेंचाइज करते हैं। जैसे सबवे एट अ फ्यूल स्टेशन, ये कॉन्सेप्ट यूएस में और डेवलप कंट्रीज में काफी पॉपुलर है, और अभी इंडिया में भी हम इसको ग्रो करते हुए देख रहे हैं। जैसे सबवे होता है फ्यूल स्टेशन में, 7-Eleven कन्वीनियंस स्टोर है वो होता है फ्यूल स्टेशन में। सो दिस आर दी एग्जांपल्स एंड दिस आर दी वेरियस फ्रेंचाइजिंग अरेंजमेंट्स जो आप देख सकते हैं मार्केट में, जो काफी पॉपुलर है। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो यू कैन आस्क इन बिटवीन, तो वी कैन कीप इंटरेक्टिव सेशन। हर्ष, पिगी का मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया, कैन यू रिपीट दैट? yes. So piggyback franchise जनरली क्या होता है, इट इज अ बिजनेस मॉडल जहां पे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को कम करना है। जो एग्जिस्टिंग रियल एस्टेट है उसी को यूज करके हम दो ब्रांड चलाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, तो फ्यूल स्टेशन है, तो अभी फ्यूल स्टेशन में काफी सारे स्पेस होता है वो अनयूटिलाइज्ड रहता है, तो उसी स्पेस को यूटिलाइज करके जैसे सबवे वालों ने वहां पे आउटलेट खोल दिया। यू माइट हैव सीन समवेयर की सबवे है वो फ्यूल स्टेशन के अंदर है, या तो फ्यूल स्टेशन के अंदर कन्वीनियंस स्टोर है, 7-Eleven है, या फिर शेल के जो फ्यूल स्टेशन है उसके वहां पे शेल का कन्वीनियंस स्टोर होता है। सो दैट इज पिगीबैक फ्रेंचाइजिंग, जहां पे हम लोग हमारा रियल एस्टेट कॉस्ट मिनिमाइज करते हैं, हमारे पास जो ऑलरेडी स्पेसिस है उसको यूटिलाइज करते हैं, और वहां पे ही हम लोग हमारा आउटलेट ओपन करते हैं। It's a kind of subletting of the existing property. yes इट्स अ काइंड ऑफ सबलेट, जैसे फ्यूल स्टेशन। बट सबलेट से डिफरेंट कैसा है कि इसमें जो ब्रांड है ना उनका ब्रांड टू ब्रांड एग्रीमेंट होता है। जैसे लेट से कि भारत पेट्रोलियम का फ्यूल स्टेशन है, इट इज अवेलेबल अक्रॉस इंडिया। अभी सबवे जो ब्रांड है वो सबवे ने भारत पेट्रोलियम के साथ एग्रीमेंट कर लिया, तो उनके पास जो ऑल अक्रॉस द इंडिया भारत पेट्रोलियम के जो आउटलेट्स है उनका एक्सेस मिल गया, कि अभी जो जहां पे भी भारत पेट्रोलियम का फ्यूल स्टेशन है वहां पे सबवे अपने ब्रांड की फ्रेंचाइज खोल सकता है।
तो दैट इज बेसिकली द पिगीबैक फ्रेंचाइज। ये अभी आप देखेंगे तो यूएस में काफी पॉपुलर है, इंडिया में भी इट इज स्टिल ग्रोइंग। मुंबई में आप देखेंगे तो 7-Eleven के स्टोर्स ओपन होने स्टार्ट हो गए हैं। सो इट इज वर्किंग इन दिस मेथड। 7-Eleven है जो एग्जिस्टिंग फ्यूल स्टेशन है उसके अंदर ही स्टोर खोलता है। Interesting. यस। Okay. सो ये सारे बेसिकली फ्रेंचाइज अरेंजमेंट्स है जो आप आपके आसपास, मतलब आप डेली आपके अराउंड में ही ये सब देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। आप देखें तो कोका कोला आप मतलब वी एवरीडे कंज्यूम, तो वो भी एक फ्रेंचाइज मॉडल पे काम करता है, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइज कहते हैं। टी पोस्ट में हम काफी बार जाते हैं, ओयो है, आइकिया है, मेनी, मतलब ये सारे हमारे आसपास में ही हम देखेंगे तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि अब ये कौन सा बिजनेस मॉडल है। हमारे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है उसमें हम, हमारा जो होराइजन है वो ब्रॉड होगा कि हमारा जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उसको भी हम सजेस्ट कर सकते हैं कि आप ये मॉडल में जाओ, आपका बिजनेस इससे ग्रो होगा, उसमें हम उनको हेल्प करेंगे। तो वी विल स्टडी लेटर कि हम लोग क्या हेल्प कर सकते हैं, कैसे हेल्प कर सकते हैं, दैट ऑल्सो। फर्स्ट आई एम कवरिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग। Now, next is types of franchising models. अभी कौन कौन से मॉडल्स में फ्रेंचाइजिंग जनरली फ्रेंचाइज बिजनेस ऑपरेट करता है? तो मोस्ट कॉमन इज फोफो मॉडल, दैट इज फ्रेंचाइज ओन्ड फ्रेंचाइज ऑपरेटेड। उसमें क्या है कि एक फ्रेंचाइजर होता है, एक फ्रेंचाइजी होती है, जो फ्रेंचाइजी लेता है वो। अभी इसमें जो फ्रेंचाइजी लेता है उसी के पास पूरा ओनरशिप है, इन्वेस्टमेंट भी उनका है, ऑपरेशंस भी उनको देखना है। तो दैट इज कॉल्ड फोफो, फ्रेंचाइज ओन्ड फ्रेंचाइज ऑपरेटेड। ओनरशिप भी फ्रेंचाइजर का, ऑपरेशन भी फ्रेंचाइजी का। इसका बेनिफिट क्या है? तो वो उनको कंप्लीट ओनरशिप देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है डिसीजन मेकिंग में, और उनको एक फ्रीडम देता है अपने तरीके से बिजनेस रन करने का, ऑफ कोर्स फॉलोइंग द ब्रांड गाइडलाइंस। नाउ उसके बाद आता है फोको एंड फीको। तो व्हाट इज फोको? फ्रेंचाइज ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। एंड व्हाट इज फीको? फ्रेंचाइज इन्वेस्टेड कंपनी ऑपरेटेड। अभी ये दोनों में मैं आपको सिमिलर लाइंस पे समझाऊंगा कि इसमें क्या होता है। इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो फ्रेंचाइज करती है, ओनरशिप जो है वो फ्रेंचाइज का रहता है, किसमें? फोको में। और ऑपरेशंस है वो कंपनी। दोनों ही केस में ऑपरेशंस जो है वो कंपनी देखेगी। कंपनी मतलब कि ब्रांड। लेट्स से टी पोस्ट अगर फ्रेंचाइज दे रहा है तो टी पोस्ट जो है वही सारा ऑपरेशंस मैनेज करेगी, जो बंदा फ्रेंचाइजी ले रहा है उसको मैनेज नहीं करना है। इसका बेनिफिट क्या है कि ब्रांड के पास एक कंट्रोल रहता है अपने ऑपरेशंस को अपने तरीके से, अपने एसओपीस के हिसाब से मैनेज करने का, जिससे जो है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होता है, उनकी क्वालिटी में कंसिस्टेंसी रहती है, उनका ब्रांड रेप्यूटेशन जो है वो मेंटेन रहता है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोको एंड फीको? फोको मतलब फ्रेंचाइजी ओन्ड, फीको मतलब फ्रेंचाइजी इन्वेस्टेड। फोको में जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो भी सारा फ्रेंचाइजी को बेयर करना है। और फीको में क्या है कि फ्रेंचाइज का सिर्फ इन्वेस्टमेंट रहता है और उसमें उनको फिक्स रिटर्न दिए जाते हैं। लेट से उनको बोला है कि आपको हर महीने इतना फिक्स रिटर्न मिल जाएगा, फिर उसमें अगर ऑपरेशंस में लॉस भी हुआ है तो भी फ्रेंचाइज को नहीं बेयर करना है, और ऑपरेशंस में अगर ज्यादा प्रॉफिट भी हुआ है तो वो भी फ्रेंचाइज को नहीं बेयर करना है। तो एक तरह से जो फ्रेंचाइजी ले रहा है उनका रिस्क कम हो रहा है फीको में एज कम्पेयर टू फोको। लास्ट इज कोको, विच इज वेरी कन्वेंशनल एंड ट्रेडिशनल मॉडल, कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, जिसमें जो है वो कंपनी ही पूरा इन्वेस्टमेंट करती है, ओनरशिप भी कंपनी का ही रहता है, ऑपरेशंस भी कंपनी का ही रहता है। इससे बेनिफिट क्या है कि उनका ब्रांड इंटीग्रिटी है, कस्टमर एक्सपीरियंस है वो मेंटेन रहता है, और उनका ऑपरेशंस पे फुल कंट्रोल रहता है। सो दिस आर द वेरियस फ्रेंचाइजिंग मॉडल्स जो हम इंप्लीमेंट करवा सकते हैं अपने क्लाइंट में। नाउ नेक्स्ट इज इंडस्ट्रीज लेवरेजिंग फ्रेंचाइजिंग। अभी हम सुनते हैं फ्रेंचाइजिंग वर्ड तो ऑलवेज वी आर ऑफ द थॉट कि फूड एंड बेवरेज ब्रांड की बात हो रही होगी, बिकॉज मोस्टली हम लोग देखते हैं कि टी पोस्ट है, चाय कॉफी है, ठेका कॉफी है, ये सारे हैं उनके ही फ्रेंचाइजिंग होते हैं, डोमिनोज, मैकडी, केएफसी। तो ऐसा नहीं है, देयर आर वेरियस इंडस्ट्रीज जिसमें फ्रेंचाइजिंग होता है। सो फर्स्ट इज फूड एंड बेवरेजेस, जैसे हमने बात किया। फिर नेक्स्ट इज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो अभी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में मैं आपको बताता हूँ कैसे फ्रेंचाइजिंग होता है। तो देयर आर प्री स्कूल्स जो फ्रेंचाइजिंग देते हैं, देयर आर कोचिंग सेंटर्स जो फ्रेंचाइजिंग देते हैं। इसका एग्जांपल है फर्स्ट क्राई प्री स्कूल। द नेक्स्ट एग्जांपल इज अलोहा, जो कोचिंग सेंटर है वो फ्रेंचाइजी देता है। फिर देयर इज कोटा कोचिंग क्लासेस जो फ्रेंचाइजी देता है।
नेक्स्ट इज ई कॉमर्स एंड लॉजिस्टिक्स। अब ई कॉमर्स एंड लॉजिस्टिक्स में फ्रेंचाइजिंग कौन कौन से ब्रांड फेमस है? तो ई कॉमर्स में आजकल क्विक कॉमर्स काफी चल रहा है, तो द ब्लिंकिट है, जेप्टो है, दे आल्सो वर्क ऑन फ्रेंचाइजिंग मॉडल। उनके जो डार्क स्टोर्स होते हैं उनके वो लोग फ्रेंचाइजी ही सेल करते हैं। फिर लॉजिस्टिक्स में है DHL है, ब्लू डार्ट है, वो सब फ्रेंचाइजिंग मॉडल में है। फिर रियल एस्टेट कंपनी में क्या कौन कौन से ब्रांड है जो फ्रेंचाइजिंग देते हैं? तो आपने एयरबीएनबी सुना होगा, विच इज वेरी फेमस एंड इट इज अ यूएस ब्रांड। उसका ही एक सिमिलर ब्रांड इंडिया में भी अभी ग्रो कर रहा है, दैट इज जोस्टेल। तो जोस्टेल का बेसिकली क्या है कि वो लोग रियल एस्टेट में है, जैसे वो लोग होटल्स है, वो लोग हॉस्टल्स है, डॉर्मेटरीज है, उनका फ्रेंचाइजिंग देते हैं। फिर कोवर्किंग स्पेसेस आजकल काफी ग्रोइंग है। कोवर्किंग स्पेसेस में भी एक ब्रांड है वीवर्क, जो आपने सुना होगा। तो वीवर्क इज द बिगेस्ट प्लेयर, दैट इज यूएस प्लेयर, उनका इंडिया में भी ऑपरेशंस है, तो वो लोग भी फ्रेंचाइजिंग मॉडल पे ही चलते हैं। फिर हेल्थ एंड वेलनेस में भी काफी फेमस एग्जांपल है, जैसे VLCC आपने सुना होगा, अपोलो फार्मेसी सुना होगा, तो वो सारे हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर के एग्जांपल्स है। फिर एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशन में वी हैव द बिगेस्ट एग्जांपल IPL, जो आज से इनफैक्ट शुरू हो रहा है। तो IPL इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ फ्रेंचाइजिंग इन द एंटरटेनमेंट सेक्टर। फिर उसके बाद जो सिनेमाज है, जैसे के सेरा सेरा है, कॉम्प्लेक्स है, मल्टीप्लेक्स, वो सारा भी फ्रेंचाइजिंग मॉडल पे ही चलता है। एंड लास्ट इज रिटेल इंडस्ट्री। रिटेल में वी कैन टेक अ वेरी फेमस एग्जांपल, मान्यवर है, लेंसकार्ट है, तो वो सारे रिटेल सेक्टर के फ्रेंचाइजिंग एग्जांपल है। तो दिस इज ऑल्सो नॉट ओनली द एग्जॉस्टिव लिस्ट, इसके अलावा भी काफी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे फ्रेंचाइजिंग इम्प्लीमेंट हो सकता है। नेक्स्ट इज डाइवर्स इनकम एवेन्यूज फॉर फ्रेंचाइजर। अभी जनरली हमको ऐसा होता है कि फ्रेंचाइजर जो है वो फ्रेंचाइजी देता है तो उसको फ्रेंचाइजी फी मिलेगा एंड रॉयल्टी मिलेगा, बट ऐसा नहीं है। इसमें काफी सारे रेवेन्यू के सोर्सेस भी ओपन हो जाते हैं, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, जो उनका एक बिजनेस को बूस्ट दे सकता है। जैसे कि फ्रेंचाइजी फीस तो है ही, रॉयल्टीज है, फिर है सप्लाई चेन रेवेन्यू विच प्लेज मेजर रोल। सप्लाई चेन रेवेन्यू में क्या आता है? तो सप्लाई चेन रेवेन्यू में जैसे आप रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं अपने फ्रेंचाइज यूनिट्स को, तो उसमें आपका मार्जिन रहता है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर उनको प्रोवाइड करते हैं, आप उनको इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, आप उनको फिनिश प्रोडक्ट्स कभी कभी प्रोवाइड करते हैं, तो दैट इज ऑल सप्लाई चेन रेवेन्यू। दिस सप्लाई चेन रेवेन्यू फॉर्म्स द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द रेवेन्यू ऑफ एनी फ्रेंचाइजर। उसके बाद आता है ट्रेनिंग एंड सपोर्ट फीस। ट्रेनिंग एंड सपोर्ट फीस में क्या है कि आप उनको टाइम एंड अगेन उनके स्टाफ को ट्रेनिंग देंगे, तो उनका ट्रेनिंग चार्जेस होता है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होता है, मार्केटिंग एक्सपेंस होता है, IT सपोर्ट होता है। तो दिस आर दी मल्टीपल एग्जांपल्स जो हमारे फ्रेंचाइजर के रेवेन्यू बन सकते हैं, विच वी हैव टू आइडेंटिफाई, विच वी हैव टू असेस एंड गाइड देम, कि आप क्या क्या रेवेन्यू और चार्ज कर सकते हैं अपने फ्रेंचाइजी से। Now next is prerequisites for franchising. अभी आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि मेरा इतने क्लाइंट्स है, उसमें से ये क्लाइंट को फ्रेंचाइजिंग में जाना है, या आपके पास कोई इंक्वायरी आया कि मुझको फ्रेंचाइजिंग में जाना है, तो उनका प्रीरिक्विजिट्स क्या है कि पहले आपको ये 4 चीजें इवेल्युएट करनी है कि उनका बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल है, उनका जो बिजनेस मॉडल है वो प्रोवन है, मीन्स वो एक जगह पे उनका एक आउटकम आ चुका है सक्सेसफुल, उनका हाई स्केलेबिलिटी एंड रेप्लिकेबिलिटी है कि जैसे ये बिजनेस है उसको मैं वहां पे दूसरी जगह पे भी इंप्लीमेंट करवाऊंगा तो इट इज अ पोटेंशियल टू स्केल, इट कैन बी रेप्लिकेटेड। फिर सारे प्रोसेसेस जो है वो वेल डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए, SOPs होने चाहिए, प्रोसेसेस जितना भी मैनुअल इंटरवेंशन कम है वो हमको देखना है, सारे जो प्रोसेसेस है वो ऑटोमेशन पे होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी होना चाहिए, उनका मार्केट में उनका एक गुडविल होना चाहिए। सो दिस आर द प्रीरिक्विजिट्स फॉर फ्रेंचाइजिंग। Now laws governing franchising. Abhi, if we are chartered accountants, obviously we get many questions on regarding law. तो now what are the, हमारे भी एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर हम फ्रेंचाइजिंग में जाते हैं तो कौन सा लॉ है वो गवर्न करेगा, कौन से लॉ में फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी का रिलेशनशिप जो है वो एस्टैब्लिश होगा। तो टू मूव फॉरवर्ड, इंडिया में कोई ऐसा स्पेसिफिक लॉ नहीं बनाया गया है विच गवर्न्स द फ्रेंचाइजिंग, अनलाइक यूएस। अगर यूएस में देखें तो यूएस में देयर इज अ फेडरल ट्रेड कमीशन फ्रेंचाइज रूल्स,
जो पर्टिकुलरली फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइज रिलेशनशिप को गवर्न करते हैं. बट इंडिया में इट इज एन इंटरप्ले ऑफ वेरियस लॉज. नाउ व्हाट इज इंटरप्ले ऑफ वेरियस लॉज? जैसे आपका फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट बनता है, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है, तो इट इज गवर्न बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. फिर आपका कंज्यूमर के साथ कोई डिस्प्यूट होता है तो इट इज गवर्न बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. देन आप फ्रेंचाइजिंग में क्या है, आप अपने जो एसओपीज है, आप अपना बिजनेस मॉडल है, अपना ब्रांड नेम है, उसको लाइसेंस करते हैं, उसको यूज करने के लिए देते हैं, तो विच कम्स अंडर आईपीआर लॉज, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी लॉज, दैट इज ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, वो सारे. फिर अगर आप हम इंडस्ट्री स्पेसिफिक बात करें, तो जैसे फूड इंडस्ट्री में अगर ब्रांड जा रही है तो उनको फसाई रेगुलेशंस एप्लीकेबल होगा. सो देयर आर वेरियस लॉज जो आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन से लॉज एप्लीकेबल होंगे. देयर इज नॉट एनी स्पेसिफिक लॉ जो फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी रिलेशनशिप को गवर्न करता है, राइट? तो किसी को क्वेश्चन? Is it easy to set up a franchisee in India, looking after all these laws? Yes, it is not an hard task. अगर हम सारे जो SOPs है, सारे जो गाइडलाइंस है वो फॉलो करते हैं तो इट इज इजी, इट इज नॉट एन हार्ड टास्क. मतलब यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि कोई स्ट्रिंजेंट इम्प्लीकेशंस है किसी लॉ का. जो हम डेली बिजनेस में है उसमें भी ये सारे लॉज लगते ही है. जैसे आपका कोई बिजनेस है, क्लाइंट है, वो किसी को कोई प्रोडक्ट सेल करता है तो वो इट इज गवर्न बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. हम लोग उसमें एग्रीमेंट नहीं बनाते, हम लोग नाम नहीं देते हैं, बट जो प्रोडक्ट सेल हुआ, सर्विस सेल हुई, तो इट इज इम्प्लाइड कि इट इज गवर्न बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. नाउ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उसमें भी लगना है. सो इट इज नॉट लाइक दैट कि ये सारे लॉज का कहीं पे कंप्लायंस. इट इज इनफैक्ट इजी. अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस में कैसा है, देयर इज वन डॉक्यूमेंट कॉल्ड फ्रेंचाइज डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट, एफडीडी. जो एफडीडी है वो जो फ्रेंचाइजर है उनको हर साल सबमिट करना है वहां पे जो फेडरल कमीशन है उनको. सो दैट इज अ डिफरेंट कंप्लायंस ऑल टुगेदर. जैसे हमारा कैसा है कि इंडिया में हम लोग हर साल ऑडिट करवानी है, रिटर्न भरना है, तो वहां पे वो तो है ही सब चीजें. बट ऐसा है कि अगर आप लोग फ्रेंचाइज दे रहे हो तो आपको एक एफडीडी करके डॉक्यूमेंट है वो भी सबमिट करना है हर साल. सो इट इज इनफैक्ट इन इंडिया इट इज इनफैक्ट इजी कि हमको कोई एक्स्ट्रा कंप्लायंस नहीं करना है. बट ये जो सारे लॉज है उनका हमको ध्यान रखना है, जो हम इनफैक्ट डेली बिजनेस में रखते ही है ध्यान. Okay. Yes. Now next is beyond franchising, alternative growth models. अभी हमने फ्रेंचाइजी के बारे में तो इतना सब जाना, बट नाउ अभी हम देखेंगे कि उसके जैसे ही सिमिलर ग्रोथ मॉडल्स और भी कौन से हैं. सो फ्रेंचाइजी इज अ ब्रॉड टर्म, मतलब इट इंक्लूड्स दीज थिंग्स, डीलरशिप, चैनल पार्टनरशिप, लाइसेंसिंग. अब इसमें क्या डिफरेंस है एज कंपेयर टू फ्रेंचाइजिंग? फ्रेंचाइजिंग में क्या है कि पूरा का पूरा जो ब्रांड है उनका राइट दिया जाता है. डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूशनशिप में क्या है कि एक प्रोडक्ट आपको है, वो प्रोडक्ट सेल करने का राइट देते हैं सिर्फ. जैसे हमने देखा था प्रोडक्ट फ्रेंचाइजिंग में, इट इज सिमिलर टू डीलरशिप एंड डिस्ट्रीब्यूशनशिप. तो कौन से इंडस्ट्री है जो इसमें पॉपुलर है कि डीलरशिप में जाते हैं? एफएमसीजी इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमोटिव है. जैसे टाटा मोटर्स का जो है वो डीलर होता है, उनका फ्रेंचाइज नहीं होता है. महिंद्रा है तो उनका डीलर होता है, उनका फ्रेंचाइज नहीं होता है. फिर चैनल पार्टनरशिप में आते हैं, तो चैनल पार्टनरशिप में द बेस्ट एग्जांपल इज सॉफ्टवेयर एंड आईटी इंडस्ट्रीज. चैनल पार्टनरशिप में क्या है कि हमारा जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उसी को लेवरेज करना है. जैसे जोहो है, तो जोहो है इट इज डूइंग चैनल पार्टनरशिप विद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. सबको पता होगा ये चीज है कि जोहो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उसको ही लेवरेज करके अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है. So as a chartered accountant, we are said to be the channel partner of Zoho. So this is very famous in IT industry. Channel partnership hai. Then next is license. What about Tally? Is it dealer distributionship or licensing? Tele is into the dealership. Zoho is into the channel partnership. Neither of them are in licensing. So why Tele is into dealership? I'll explain you the basic difference. So Tele में it is like कि अगर आप Tele का सॉफ्टवेयर बेच रहे हो तो Tele का जो सपोर्ट है वो भी आपको ही देना है, उसमें ऑप्शन नहीं है. So that is dealership. Why Zoho is channel partnership? Because Zoho में there is an option. Zoho में आप सिर्फ सॉफ्टवेयर सेल करो वो भी ऑप्शन है. Zoho में दूसरा ऑप्शन वो भी है कि आप सॉफ्टवेयर भी सेल करो
आप सपोर्ट भी प्रोवाइड करो. So that is channel partnership basically. Okay. Now what is licensing? तो लाइसेंसिंग इज कि हम जो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको यूज करने का राइट लेते हैं. जैसे फार्मा कंपनीज है तो फार्मा कंपनीज वर्क्स ऑन लाइसेंसिंग. वो लोग प्रोडक्ट का फॉर्मूला, मेडिसिन का फॉर्मूला बना के वो फॉर्मूला आउटसोर्स कर देते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए. सो दैट इज लाइसेंसिंग. उन्होंने फॉर्मूला है वो लाइसेंस किया है. सो दैट इज नॉट फ्रेंचाइज. सो दिस आर दी बेसिक 3 ग्रोथ मॉडल्स जो बियॉन्ड फ्रेंचाइज भी हम जा सकते हैं कि ये मॉडल भी इंप्लीमेंट करवा सकते हैं. Now let's move forward to the market potential of franchise. तो market potential क्या है वो basically हम facts and figures देखते हैं. So this is the top 100 franchise split according to industry. तो इसमें देखते हैं तो food and beverages share the highest position, that is 27%. तो इंडिया में जो टॉप 100 ब्रांड्स है फ्रेंचाइजिंग में उसमें से 27% शेयर फूड एंड बेवरेजेस का है. नेक्स्ट कम्स रिटेल सेक्टर जिसका 24% शेयर है. उसके बाद है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जिसका 16% शेयर है. उसके बाद है कंज्यूमर सर्विस जिसका 14% है. देन हेल्थ केयर एंड ब्यूटी जिसका 11% है. देन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जिसका 6% है और अदर इंडस्ट्री जिसका 2% है. जैसे अदर इंडस्ट्री में आ गया कंज्यूमर सर्विस आ गया, रिटेल रियल एस्टेट आ गया, वो सब आ गया. So someone has asked a poll, so I have answered that. Yes. Yeah, I have raised the poll to just know if any participant has done franchisee ka kuch kaam. Okay. Yes. So that is what my first question was. So yes, if you any one of you have dealt with anything, any small part of also franchising, then you can share your experience. Yeah, we can keep it at the end once the session, Okay, yes. presentation is Sure, complete. sure, We can sure. ask for the reviews. Yeah. Sure. So this is the facts of the franchising. Now let's move forward. So what is its market potential in India? So currently the India is the second largest franchisee market globally, and more than 300 companies are starting franchising every year in India. So what is the franchise industry valued? It is valued around 800 billion INR today, and in next 5 years it is expected to be valued at 12,000 billion INR. It has contributed around 2% of national GDP and also created 1 million jobs in last year. So this is basically the market potential which is yet to be explored. Now, why now? Why it is the right time, it is the correct time to enter into this industry in franchising? So these are some of the facts that in explosive industry growth, जैसे हमने पिछले स्लाइड में ही देखा, there is a potential to grow. अभी जो 800 billion का market है, it will grow to 12,000 billion in next 5 years. That now next is tech and digital advancements. So how tech and digital advancements has supported the business growing. जैसे IT है सेक्टर वो काफी हद में बढ़ गया है, तो फिर जो हमारे बिजनेसेस है उस वो ऑटोमेशन में जा रहे हैं, which is now easy to expand. Changing consumer behavior. Consumers are ready to pay high for a brand. जैसे आज एक ब्रांड आउटलेट है which earns more than the independent outlet जो locally है. So changing consumer behavior, low risk, low investment entrepreneurship. फ्रेंचाइज है उसमें एक रेप्लिकेट बिजनेस मॉडल रेप्लिकेट करना है, उसमें एक प्रूवन मॉडल है, सक्सेसफुल मॉडल है, उसी को रेप्लिकेट करना है. सो देयर इज अ लो रिस्क इन दी न्यू इन्वेस्टमेंट. राइजिंग एंटरप्रेन्योरशिप अमंग यंगर जनरेशंस. आजकल के जो यंगर जनरेशन है उनको जॉब नहीं करना है, उनको एंटरप्रेन्योर बनना है, उनको खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है. सो दिस इज द राइट टाइम कि फ्रेंचाइजिंग में एंटर हो सकते हैं. Now let's move forward to the main topic, that is role of chartered accountant in franchising. So as a chartered accountant हम लोग franchising में क्या role play कर सकते हैं? So these are the 3 key roles which we can play. That is we'll start one by one. That is first is determine if the business is viable for franchising. अभी let's say आपके पास काफी सारे clients है from across the various industries. तो इसमें आपको पहले डिटरमाइन करना है कि उनका जो बिजनेस है दैट इज वायबल फॉर फ्रेंचाइजिंग. क्या वो बिजनेस फ्रेंचाइजिंग में
जा सकता है, अगर जाएगा तो वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा. So that is the main thing, right? So what is the first thing? Evaluation of current business model, revenue streams and operational efficiencies. इसमें आपका जो करंट बिजनेस मॉडल है कि उनका रेवेन्यू मॉडल क्या है, वो कौन से रेवेन्यू स्ट्रीम से पैसा कमा रहे हैं, उनका ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या है, उनका बिजनेस का स्केल क्या है, दैट इज वो अभी स्टार्टअप है, मिड लेवल पे है, उन्होंने एक्सीलरेशन अचीव कर लिया है, तो कौन से स्केल पे बिजनेस है वो इवेल्युएट करना है. उसके बाद आपको टीम रोल्स है, मैनेजमेंट हायरार्की है, वर्कफोर्स कैपेबिलिटी है कि जैसे उनका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो कैसा है, उन्होंने हायरार्की कैसे बना के रखी है, जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उनको प्री डिफाइंड रोल दे के रखा है कि नहीं रखा है. सो दिस आर दी बेसिक थिंग्स यू नीड टू आइडेंटिफाई इन दी ऑर्गेनाइजेशन. ये सारे चीजें आपको उनको पहले आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी. दिस आर दी प्री रिक्विजिट्स. लेट्स हमने आगे वो प्री रिक्विजिट्स देखा था, वो सारे हैं, तो वो सारे हम उनको आइडेंटिफाई करके दे सकते हैं. फिर है रेवेन्यू रिव्यू ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस ऑफरिंग्स. उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है, तो उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी हम उनको इंप्रूव करवाने में हेल्प कर सकते हैं बेस्ड ऑन मार्केट रिसर्च. फॉर एग्जांपल उन्होंने अभी लेट्स से कोई फूड ब्रांड है, लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं पिज़्ज़ेरिया शॉप है, तो हम पिज़्ज़ेरिया शॉप को कंसल्टेंसी दे रहे हैं, तो पिज़्ज़ेरिया शॉप में उन्होंने पिज्जा रखा है एंड पास्ता रखा है, तो ये उनका हो गया प्रोडक्ट पोर्टफोलियो. अब हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप साथ में मॉकटेल्स है, बेवरेजेस के जो ऑप्शंस है वो भी प्रोवाइड करो. सो दैट इज लाइक सजेस्टिंग कि उनका जो रेवेन्यू है वो कैसे इंप्रूव हो सकता है बेसिकली. Yeah, there is one hand raised. Yeah, Lavina, you can unmute and Yes. ask the question. yes. हेलो सर, एक्चुअली एक क्वेश्चन था मेरा कि ड्यू Yes. डिलिजेंस लगता है क्या फ्रेंचाइजी में? Sorry, can you repeat the question? She is asking whether due diligence is required for franchisee modeling. Yes, Yeah. yes, definitely it is required, जो हम लेटर पार्ट में इनफेक्ट कवर भी करने वाले हैं हमारे सेशन में. ओके सर. Yes. Now next is examination of role of technology in the business operations. टेक्नोलॉजी कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें फ्रेंचाइजिंग में, तो हमको वो आइडेंटिफाई करना है कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उन्होंने कौन से एक्सटेंट तक टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट की है. जैसे उन्होंने बिलिंग सॉफ्टवेयर है वो इम्प्लीमेंट कर दिया है कि नहीं, वो मैनुअल है, उन्होंने जो HR मॉड्यूल है वो इम्प्लीमेंट कर दिया है कि नहीं, उनका ऑटोमेशन कितना है, डिजिटल टूल्स का यूज कितना है, वो आइडेंटिफाई करवाना है. आइडेंटिफाई करके इनफेक्ट उनको वो इम्प्लीमेंट भी करवाना है. उनके SOPs जो है, नेक्स्ट जो है हमारा कि उनको ऑर्गेनाइजेशन में SOPs बना के देने हैं, वो रेडी करवाने हैं और वो इम्प्लीमेंट करवाने हैं. फिर नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ इंडस्ट्री ट्रेंड्स टू असेस कंपटीशन, मार्केट डिमांड एंड एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज. तो इंडस्ट्री अगर कौन सी है, उसका जो इंडस्ट्री ट्रेंड क्या चल रहा है वो आइडेंटिफाई करना है. प्रॉफिटेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट एंड फ्रेंचाइज फी स्ट्रक्चर्स. तो ये था बेसिकली, एक था कि हम लोग एज अ होल उनको मैनेजमेंट कंसल्टेंसी दे सकते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो आपका बिजनेस फ्रेंचाइजेबल है कि नहीं, उसको हम लोग इवेल्युएट करके देंगे, उसको स्टडी करके देंगे और उसके हिसाब से हम उनके बिजनेस में इंप्रूवमेंट्स करवाएंगे ताकि उनका जो बिजनेस है वो फ्रेंचाइजेबल हो और फ्यूचर में वो लोग फ्रेंचाइजी में जा सके. So that is the first step a chartered accountant can provide service into. Now next is establish the key financial and operational structures. तो ये लोग हम मतलब काफी स्ट्रक्चर्ड वे में हम लोग इसको नहीं करते हैं, बट काफी बार हम लोग हमारे क्लाइंट में ये सर्विस देते ही है. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है और वो आपको पूछता है कि मेरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेरे को चाहिए बना के, कि मेरा जो फ्रेंचाइजिंग में मैं जाऊंगा तो मतलब कितना इन्वेस्टमेंट होगा. मतलब फ्रेंचाइजी की बात नहीं करते, बट एक लेट से नया बिजनेस किसी को स्टार्ट करना है तो वो लोग हमारे पास आते हैं और हम उनको फाइनेंशियल इवेल्युएशन करके देते हैं कि आपका बिजनेस जो है वो स्टार्ट करने के लिए इतना कैपिटल आपको रिक्वायर्ड है, इतना आपका इन्वेस्टमेंट होगा, फिर इतना वर्किंग कैपिटल होगा, इतने टाइम में आपका पे बैक पीरियड आएगा. तो यही सारी चीजें अब हमको करनी है फ्रेंचाइजिंग के लिए. जैसे किसी ब्रांड को अगर जाना है फ्रेंचाइजिंग में, तो वहां पे हमको वही चीजें इवेल्युएट करनी है कि जो लोग उनकी फ्रेंचाइजी लेंगे, तो बेसिकली फ्रेंचाइजी मॉडल हमको डेवलप करना है ना. वो फ्रेंचाइजी मॉडल क्या होता है, फ्रेंचाइजी मॉडल मतलब देयर आर फ्यू पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड. जैसे इनिशियल फ्रेंचाइजिंग फी क्या लेंगे, रॉयल्टी का परसेंटेज क्या लेंगे,
आउटलेट का सेटअप कॉस्ट कितना होगा, मार्केटिंग एक्सपेंस कितना होगा, इक्विपमेंट्स का कॉस्ट कितना होगा. सो दैट इज ऑल इन ऑल कि एक आउटलेट रेडी करवाना है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल फोरकास्ट. तो वही हमको उनको करके देना है क्लाइंट को कि आपका फ्रेंचाइजिंग मॉडल ऐसा होना चाहिए. फिर उसके बाद आता है फीस, रॉयल्टी, वो सब हमने डिस्कस कर लिया. फिर आता है ऑनगोइंग ऑपरेशनल एक्सपेंस, रिसोर्स अलोकेशन एंड कॉस्ट कंट्रोल. अब ये क्या चीज है, तो इसमें बेसिकली ऐसा होता है कि आपको आइडेंटिफाई करना रहता है कि हमारा जो बिजनेस है ऑनगोइंग, मतलब आज फ्रेंचाइजिंग मॉडल में तो चले गए, फिर फ्रेंचाइजिंग मॉडल इंप्लीमेंट करवाने की वजह से मेरा कॉस्ट है वो कितना इंक्रीज होगा, ऑपरेशनल एक्सपेंस मेरा कितना इंक्रीज होगा, उसके सामने मेरा रेवेन्यू कितना आएगा, वो सब मेरे को असेस करके देना पड़ेगा क्लाइंट को. एसओपीस का हमने बात कर, जस्ट अ मिनट, यस, फिर एसओपीस का तो हमने बात कर लिया था. उसको एसओपीस हमको इन प्लेस करवाने हैं. ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड सपोर्ट सिस्टम एक डेवलप करना है. जैसे फ्रेंचाइजिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन करनी है, सर्विस स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने हैं, आउटलेट का इंटीरियर है वो मेंटेन करना है, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द अल्टीमेट गोल, कि कस्टमर को एक जगह पे जाए या दूसरी जगह पे जाए सेम सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए. तो उसके लिए ट्रेनिंग काफी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इसमें. जैसे तो हमको एक फ्रेंचाइजर, हमारा बीइंग फ्रेंचाइजर इज आवर क्लाइंट, तो हमको उनको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो डेवलप करके देना है. इनफैक्ट इफ वी आर एबल टू arrange the training sessions, conduct training sessions, we can conduct the training sessions, we can charge that from client. Now next is draft and finalization of franchise agreements, non-disclosure agreements and legal documents. Now let's say कि आप लोग बाकी सब मैनेजमेंट कंसल्टेंसी और वो है, वो अगर हम बात करें तो इट बिकम्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट, बट आपको वो नहीं करना है. तो देयर इज वन सेपरेट पार्ट दैट इज फ्रेंचाइज अग्रीमेंट्स. मतलब आप लोग सिर्फ ऐसा करो क्लाइंट के साथ कि आप उनको बोलो कि आपका जो फ्रेंचाइज अग्रीमेंट है वो हम ड्राफ्ट करके देंगे आपको. तो उनका एक फ्रेंचाइजी सेल होगा, उन पे हम अग्रीमेंट ड्राफ्ट करके देंगे, और ऐसा हर एक फ्रेंचाइजिंग में हम उनको अग्रीमेंट ड्राफ्ट करके देंगे. देन इट कैन प्ले अ वेरी मेजर रोल इन आवर रेवेन्यू. फिर आता है फ्रेंचाइज ब्रोशर. अभी लेट से हमने क्लाइंट में फ्रेंचाइजिंग मॉडल रेडी करवा दिया, फ्रेंचाइजिंग मॉडल बना के दे दिया. अब उनको वो सेल कैसे करेंगे, तो उनके लिए होता है एक फ्रेंचाइज ब्रोशर, उनका एक मार्केटिंग मटेरियल प्रिपेयर करना रहता है. सो दैट इज फ्रेंचाइज ब्रोशर नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड. फिर है मॉनिटर एंड एनहांस फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी. नाउ व्हाट इज दिस मॉनिटर एंड एनहांस फाइनेंशियल ऑपरेशनल एफिशिएंसी? सो बेसिकली हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था फ्रेंचाइजिंग कंसल्टेशन को हमारे एंटायर. सो फर्स्ट पार्ट वाज कि हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि बिजनेस फ्रेंचाइजेबल है, वायबल है कि नहीं. अगर नहीं है तो उसको वायबल बनाएंगे. काफी सारे उसके पैरामीटर्स होते हैं, उसको हम इंप्लीमेंट करवाएंगे और वायबल बनाएंगे. सेकेंड इज हमने बिजनेस को वायबल तो बना दिया, फिर उसके बाद बिजनेस जाएगा फ्रेंचाइजिंग में. तो उनको फ्रेंचाइजिंग में जाने के लिए क्या क्या चीजें, क्या क्या सारे उनके ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करवाने हैं, वो चेंजेस वो हम इंप्लीमेंट करवा के देंगे, प्रोसेस स्टैंडर्डाइज करवा के देंगे, उनका रेवेन्यू मॉडल और बिजनेस मॉडल रेडी करके देंगे. उसके बाद अभी बिजनेस फ्रेंचाइजिंग में चला गया, तो फ्रेंचाइजिंग में चला गया उसके बाद उनको काफी सारे रिपोर्ट्स, काफी सारे मेजरमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो एक हमारा सर्विस होता है एमआईएस रिपोर्टिंग, जिसको हम बोलते हैं, जिसमें एमआईएस रिपोर्टिंग में हम लोग उनको फ्रेंचाइज फाइनेंशियल हेल्थ रिपोर्ट एंड केपीआई स्कोर कार्ड्स बना के देंगे. इसका पर्पस क्या है, जैसे लेट से कोई ब्रांड के 25 आउटलेट हो गए ऑल ओवर इंडिया, तो वो 25 आउटलेट को उनको इवेल्युएट करना है, तो उसका एक पैरामीटर सेट होता है जिसको बोलते हैं केपीआई. तो हम केपीआई स्कोर कार्ड्स बना के देंगे. बेस्ड ऑन दैट इवेल्युएशन जो बिजनेसमैन है वो एक डिसीजन ले सकता है कि आउटलेट में मेरे को कितना मार्केटिंग एक्सपेंस इंकर करना है, या आउटलेट ओवर परफॉर्म कर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है, कौन से लोकेशन पे मेरे को क्लोज कर देना चाहिए, कौन से लोकेशन पे मेरे को दूसरे आउटलेट की रिक्वायरमेंट है तो मेरे को एक्सपांड करना चाहिए. सो इट बेसिकली हेल्प्स मैनेजमेंट टू टेक डिसीजंस. फिर उसके बाद आता है फ्रेंचाइजर रेवेन्यू रिपोर्ट. Sorry, there is some disturbance.
Yes, let's move forward. तो फ्रेंचाइज, उसके बाद आता है फ्रेंचाइजर रेवेन्यू रिपोर्ट. सो व्हाट इज फ्रेंचाइजर रेवेन्यू रिपोर्ट? सो बेसिकली फ्रेंचाइजर रेवेन्यू रिपोर्ट इज फ्रेंचाइजर जो है, जो फ्रेंचाइजी दे रहा है, उनके 15, 20, 25 आउटलेट हो गए, तो अब उनको वो आउटलेट से क्या उनकी इनकम हुई, जैसे उनका रॉयल्टी कलेक्शन कितना हुआ, उनका रॉ मटेरियल में मार्जिन कितना हुआ, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सेल से प्रॉफिट कितना हुआ, तो हम उनको एक कंसोलिडेटेड 15-20 जो उनके सारे भी फ्रेंचाइजीज है उनका एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट करके देंगे कि ये फ्रेंचाइजीज से आपको कितनी इनकम हुई, तो उसको बोलते हैं फ्रेंचाइजर रेवेन्यू रिपोर्ट. एंड नेक्स्ट इज ऑपरेशनल ऑडिट्स व्हिच इज कंडक्टेड पीरियोडिकली. वो सारे इट डिफर्स फ्रॉम ब्रांड टू ब्रांड. जैसे कई ब्रांड है वो क्वार्टरली ऑडिट्स करवाते हैं, कई बार वो एनुअली ऑडिट करवाते हैं, कई बार वो हाफ ईयरली ऑडिट्स करवाते हैं. इट इज टू एंश्योर कि उनके जो सारे आउटलेट्स है वो उनके एसओपीज फॉलो कर रहे हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो रहा है, और जो जहां पे भी वो लेक कर रहा है वो एरिया को इंप्रूव करने के लिए ऑपरेशनल ऑडिट्स होता है. सो वी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वी कैन प्रोवाइड दिस सर्विस कि हम उनको ऑपरेशनल ऑडिट्स कंडक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं. So this is the basic three parts in which I have divided कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन से सर्विसेज दे सकता है. नाउ अभी ये जो हमारा पूरा डिस्कशन था, इट वाज फ्रॉम द पॉइंट पर्सपेक्टिव ऑफ फ्रेंचाइजर पर्सपेक्टिव कि एज अ ब्रांड, एज अ फ्रेंचाइजर किसी को हमसे कंसल्टेंसी लेनी है, तो बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोग उनको क्या कंसल्टेंसी दे सकते हैं. नाउ नेक्स्ट कम्स द सर्विसेज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फ्रेंचाइजिंग, जो अभी बीच में मैडम ने क्वेश्चन किया था रिगार्डिंग ड्यू डिलिजेंस. सो उसकी अब हम बात करते हैं, ड्यू डिलिजेंस की. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल मना लीजिए आपको कोई ब्रांड की फ्रेंचाइज लेनी है. लेट्स से यू वांट टू टेक अ फ्रेंचाइज ऑफ टी पोस्ट. तो अभी आप क्या करेंगे, टी पोस्ट को कांटेक्ट करेंगे कि मेरे को आपकी फ्रेंचाइजी लेनी है, तो टी पोस्ट वाला आपको उनका एक ब्रोशर भेजेगा, फ्रेंचाइज ब्रोशर, जिसमें सारे उनके पैरामीटर्स, बेसिक टर्म्स लिखे होंगे. But how would you know that if I am investing this 15 lakhs, 20 lakhs, is it worth investing in the tea post? Let's say हमारे पास एक काफी पॉपुलर एग्जांपल है एमबीए चाय वाला. तो एमबीए चाय वाला है, उनके सारे जो आउटलेट्स है वो फेल हो गए. उनको जिन जिन लोगों ने उनमें इन्वेस्ट किया था, जो 15-20 लाख 25 लाख, उनका सारा पैसा इट हैज बिकम वेनिश्ड. उनको कुछ भी रिटर्न्स नहीं मिला है. So it is very much important कि being a investor, so franchising has now become an alternative investment option. वो भी हम देखते हैं, जैसे माइक्रो फ्रेंचाइजिंग एक कॉन्सेप्ट है. सो व्हाट इज माइक्रो फ्रेंचाइजिंग? बेसिकली जहां पे भी 50,000 से लेके 10 लाख तक का इन्वेस्टमेंट आता है उसको हम बोलते हैं माइक्रो फ्रेंचाइजिंग. इट इज अ लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस मॉडल जहां पे रिस्क कम रहता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम रहता है, और जल्दी आपका ब्रेक इवन आ जाता है. सो लेट्स से आपको किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना है विच इज अ माइक्रो फ्रेंचाइजिंग बिजनेस, तो आपको उसका ड्यू डिलिजेंस करवाना काफी जरूरी है. सो दैट इज दी वन सर्विस विच वी कैन प्रोवाइड कि आपके पास कोई पर्सन आता है, वो बोलता है वांट टू इन्वेस्ट इन दिस फ्रेंचाइजिंग. जैसे हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वी डू दी प्रायर असेसमेंट कि इसमें कौन से स्क्रिप्ट में इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है. सो इट इज सिमिलर कि आप अगर फ्रेंचाइजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, 10 लाख 15 लाख रुपए लगा रहे हैं, तो ड्यू डिलिजेंस करवाना काफी इंपॉर्टेंट है. सो हाउ ड्यू डिलिजेंस वी कैन डू दैट? हमारे पास क्लाइंट आएगा, वो बोलेगा मेरे को ये ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेनी है, तो उसमें हम लोग उनको ड्यू डिलिजेंस करके देंगे कि आपको एक्चुअल में ये ब्रांड के फ्रेंचाइजिंग लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए. तो उनका जो एग्जिस्टिंग आउटलेट्स है उसको हम ड्यू डिलिजेंस करेंगे काफी पैरामीटर्स पे. So that is the micro franchising and due diligence. Now next is master franchising. What is master franchising? So master franchising is given exclusive right to develop and manage brand in a specific region. जैसे किसी को जैसे कोई ब्रांड है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ मैकडॉनल्ड्स. तो मैकडॉनल्ड्स है वो मास्टर फ्रेंचाइजी ही देता है. मास्टर फ्रेंचाइजिंग क्या होता है कि मैकडॉनल्ड्स ने बोल दिया कि मैंने गुजरात का मास्टर फ्रेंचाइजी दिया है, तो गुजरात का मास्टर फ्रेंचाइजी पूरा राइट्स किसी एक ही पर्सन के पास होगा. नाउ दैट पर्सन हैज टू डेवलप द मैकडॉनल्ड्स ब्रांड इन गुजरात, एंटायर गुजरात रीजन. अभी उनके पास राइट होगा फ्रेंचाइजी को सेल करने का. So there are basically the thing यूनिट फ्रेंचाइजिंग एंड मास्टर फ्रेंचाइजिंग. जो एक आउटलेट होता है उसको यूनिट फ्रेंचाइजिंग बोलते हैं,
और जो पूरा एंटायर रीजन डेवलप करने का राइट होता है उसको मास्टर फ्रेंचाइजिंग बोलते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मास्टर फ्रेंचाइजिंग, जहाँ पे एक्सक्लूसिव राइट्स देते हैं, उसमें रीजनल कंट्रोल होता है, उसमें रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी बढ़ जाते हैं। जो बंदा मास्टर फ्रेंचाइजी ले रहा है, जो इन्वेस्ट कर रहा है, उसको रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा, उसमें उनको एक ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी ब्रांड एक्सपांड करने की। सो इन बोथ दी केसेस, अगर किसी को माइक्रो फ्रेंचाइजिंग में जाना है, किसी को मास्टर फ्रेंचाइजिंग में जाना है, तो ड्यू डिलिजेंस की हम एक उनको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। दिस इज द लास्ट स्लाइड, द फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस जो हम दे सकते हैं क्लाइंट को। उसमें हम लोग क्या करेंगे, उनका फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे, उनका आरओआई है वो स्टडी करेंगे, उसमें रिस्क कितना है, उनका पेबैक पीरियड कितने टाइम में आ जाएगा। बट दिस इज द एंटायर स्टडी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फ्रेंचाइजी। जो पर्सन फ्रेंचाइजी लेना चाहता है उसके लिए हम ये लोग स्टडी करेंगे और उनको इन्वेस्टमेंट प्लान, एक स्ट्रेटेजिक प्लान बना के देंगे कि यू शुड इन्वेस्ट इन दिस ब्रांड। Now alternatively there is one another service also which we can provide. Let's say some person wants to take a franchisee but he is not aware that which brand to go, then we can identify and evaluate that you go with this brand. There are certain parameters which needs to be known, कि हम क्लाइंट को पूछेंगे आपका इन्वेस्टमेंट रेंज क्या है, आप खुद उसको मैनेज करेंगे या आप किसी मैनेजर को हायर करेंगे, आपको कितने टाइम में पेबैक पीरियड चाहिए, आपका इन्वेस्टमेंट में रिटर्न का कितना एक्सपेक्टेशंस है, हाउ मच टाइम यू कैन डेडिकेट इनटू द बिजनेस, आपको कौन सी इंडस्ट्री में जाना है। तो दिस आर द पैरामीटर्स व्हिच वी कैन नो फ्रॉम द क्लाइंट, व्हिच वी कैन लर्न फ्रॉम द इंडिविजुअल, और उसके बेसिस पे जो मार्केट में फ्रेंचाइजिंग ऑप्शन अवेलेबल है उसमें से हम उनको सजेस्ट करके दे सकते हैं that you go with this brand, you go with this brand. That is also one service which we can provide. So yes, with this I am ending my there is one query from Vishesh. Yes, Vishesh, you can unmute and ask your query. Yes, now we can start the Q&A session. Yes. Okay. Good morning, sir. Actually, Good morning. my query was, why did the MBA Chaiwala franchisee failed? Right. Yes, ask. He is asking why did MBA Chaiwala franchisee failed even after they would have done due diligence and everything. So why? Okay. Understood. So now why MBA Chaiwala failed? There are few reasons of it. जैसे MBA Chaiwala ने क्या किया था कि उन्होंने एक फ्रेंचाइज मॉडल तो डेवलप कर दिया, बट उन्होंने जो है वो मार्केट रिसर्च का ठीक से नहीं किया था। इसमें मार्केट रिसर्च प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि आपको आपके आउटलेट्स कहाँ पे ओपन करने चाहिए। लाइक वी टेक एग्जांपल ऑफ टी पोस्ट विच इज अ वेरी सक्सेसफुल फ्रेंचाइज इन द सेम कैटेगरी। जैसे MBA Chaiwala था, इट इज ऑल्सो इनटू द सेम कैटेगरी, टी पोस्ट इनटू द सेम कैटेगरी। अब टी पोस्ट का हम देखें ना तो उनका डिफरेंशियल प्राइसिंग है। नाउ व्हाट इज डिफरेंशियल प्राइसिंग? जैसे आई टेक एग्जांपल, यहाँ पे ही मेरे ऑफिस के पास में टी पोस्ट का आउटलेट है, तो दे प्रोवाइड टी इन 30 रुपीज। नाउ इफ आई गो टू दी अनदर आउटलेट, लेट्स से यहाँ पे मेरा दूसरा आउटलेट है टी पोस्ट का विच इज नॉट इनटू द कॉर्पोरेट एरिया, तो वहां पे वो लोग चार्ज करते हैं 55 रुपीज ऑफ द सेम टी। So this is basically the differential pricing which T Post has implemented, which MBA Chaiwala failed to implement. तो कहीं ना कहीं पे जो MBA Chaiwala का जो मॉडल था, वहां पे उनका जो रेवेन्यू मॉडल है वो क्लियर नहीं था, उनका जो मार्केट रिसर्च है वो क्लियर नहीं था। तो एज अ ब्रांड वो जो उनका स्ट्रेटेजी होना चाहिए एक्सपेंशन का, दैट वाज नॉट वेरी क्लियर। सो उस वजह से वो फेल हो गया। एंड यस, इन दी अगेन इन द सेम केस, अगर जो फ्रेंचाइजी ले रहा है वो पर्सन ने अगर ड्यू डिलिजेंस करवा के अगर जो फ्रेंचाइजी लिया होता, तो देयर कुड बी मेनी पर्संस जो उन्होंने अपने हार्ड अर्न मनी दे कुड हैव सेव्ड, कि उनकी फ्रेंचाइजी अगर हम ड्यू डिलिजेंस करने जाए तो उनका बिजनेस मॉडल ही स्केलेबल नहीं था। इट वाज नॉट अ रेप्लिकेबल बिजनेस मॉडल कि जो फ्रेंचाइजिंग में जा सके। बट ड्यू टू द लैक ऑफ अवेयरनेस इन दी कॉमन पीपल, जो फ्रेंचाइजी ले रहा है उनको वो अवेयरनेस ही नहीं था कि मेरे को पहले ड्यू डिलिजेंस भी करवाना चाहिए, तो उसकी वजह से उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया बट इट फेल्ड, मिजरेबली फेल्ड। Yes, Vishesh. Any more query from your end? Sir, there is one more question. Yes. Just like MBA Chaiwala, there is one more franchise called Chai Satta Bar, CSB.
Yes, which is correct. quite more successful than any others. Yes, in the agree. Yes. So I tell you the example of चाय सूटा बार. अभी राजकोट में ही चाय सूटा बार है. So what is the concept of चाय सूटा बार? वो लोग जो है वो उनका जो कॉन्सेप्ट है ना, that is completely into the localization. मतलब जहाँ पे भी लोकल क्या चल रहा है वो लोग वो इम्प्लीमेंट करवाएंगे. जैसे राजकोट में मैं एग्जांपल लूं तो राजकोट में जो है वो चाय सूटा बार का आउटलेट है. तो वो चाय सूटा बार वाला के आउटलेट में वो लोग दे आर सेलिंग दी गाठिया. वो लोग गाठिया भी बेच रहे हैं राजकोट में. बट अगर आप दूसरे चाय सूटा बार के आउटलेट में जाएंगे तो वहां पे नहीं होगा. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने काफी तरीके से लोकलाइजेशन में वो लोग गए कि यहाँ पे अगर ये प्रोडक्ट चल रही है तो वी विल इंक्लूड दैट प्रोडक्ट इन आवर मेनू, जिससे कि हमारे जो इन्वेस्टर्स है, जो हमारी फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, उनका काफी जल्दी पे बैक पीरियड आ जाए, उनका जो इन्वेस्टमेंट है उनको अच्छा रिटर्न्स मिले. तो दे हैव अडॉप्टेड दैट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी. So these are the different strategies which you can suggest to your client कि आप अगर इस तरह से करेंगे तो that would be very successful. So yes, Chai Suta Bar, we can say that it is a very successful franchising model they have created. Okay, sir. Thank you. Yes. Okay. Any Hello, other sir. query? Yes, I have. I'm Swati Rathi. Yeah. Yes. that's Hi Swati. Yes. Hi. Hello, sir. Sir, according to you, which sector is more good? I must say more beneficial for franchisee. Like you are asking from the perspective of franchisor or franchisee? Franchisee. A If I want to franchisee. take any franchisee, according to you, which is suggestible? See, according to me, I would suggest you the franchise of. See, there are few parameters which need to be considered. जैसे एक example से हम बात करते हैं कि आपको अगर ऐसा है कि you own will manage the operations. आप खुद अगर operations manage कर सकते हैं, then food and beverage industry is the best industry जहाँ पे आपका पैसा जल्दी recover हो जाएगा. But उसमें challenges क्या है? On the again कि आपको ऑपरेशंस खुद मैनेज करना है, आपको स्टाफ को खुद मैनेज करना है. अगर वो आप किसी मैनेजर पे या किसी एम्प्लॉय पे छोड़ देंगे तो वो बिजनेस स्केल नहीं हो पाएगा. तो अगर आप अपना फुल टाइम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, देन यू कैन डेफिनेटली गो विथ फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री व्हिच इज बेस्ट. ऑन द कॉन्ट्रारी, अगर आपको ऐसा है कि मेरा जो टाइम है वो मैं डेडिकेट नहीं कर पाऊंगी, आई विल हायर अ मैनेजर हु विल मैनेज द बिजनेस. Yes. देन आप किसी भी क्लोथिंग ब्रांड है उनका फ्रेंचाइजिंग ले लो, विच अगेन द बिजनेस कैन बी मैनेज वेरी वेल बाय मैनेजर. आप किसी हेल्थ एंड वेलनेस ब्रांड का फ्रेंचाइजिंग ले लो, विच अगेन कैन बी मैनेज बाय मैनेजर. आप किसी लॉजिस्टिक्स का ले लो, दैट अगेन कैन बी मैनेज बाय अ मैनेजर. तो ऐसे ऐसे डिफरेंट आपका जो पैरामीटर्स है उस पे हम लोग वो इवेल्युएट करके देंगे. Yes. Yes. Okay. Okay. Yes. Understood. Understood. Yes. उसमें फिर इन्वेस्टमेंट रेंज कैन ऑल्सो बी वन पैरामीटर. किसी का ऐसा है कि मेरे को अप टू 10 lakhs ही जाना है, तो अप टू 10 lakhs में फिर कोई इंडस्ट्रीज नहीं कवर होंगी. फिर किसी का ऐसा है कि मेरे को कोई प्रीमियम फ्रेंचाइजिंग ही लेना है, सो मेरे को इन्वेस्टमेंट ही मेरा 50 lakhs से स्टार्ट होना चाहिए. तो ये सारे Yes. पैरामीटर्स पे हम लोग उनको गाइड करेंगे कि आपको कौन सी इंडस्ट्री में जाना चाहिए और कौन सी ब्रांड के साथ एसोसिएट होना चाहिए. Yes, yes. The reason behind asking this question Yes. is like अभी आजकल हम लोग जो देखते हैं around the people, everyone is taking somewhat little or more is involved in that business. Like someone is taking for limbu, someone is going for that soda and all. हर Right. कोई ना कोई फ्रेंचाइजी ले रहा है. तो that's why my question कि अगर हमको एक additional business income source के एंगल में देखना है तो हम कौन से इसमें जाते हैं. But you cleared it very well. Okay. Thank you. Thank you. I have one question, Manali. Yes, Yes. Shivanya. Yeah. So, Harsh Rajani, the session was, I mean, very insightful and informative. My question to you is, say if I want to go and invest some amount in franchising, okay? Right. So as you mentioned, first question was which sector. So as you mentioned, food and beverages or whatever, like, food related franchisees, Right. something which gives you quick returns of your money. But Yes. what are the due diligences which one needs to do before investing into any franchises? Something what I would like to know. Okay. So basically, what are the due diligence you need to do?
So when you want to go with any franchising, you ask them that you share me at least the data of last 3 years of your 5 existing outlets. Okay. Then you ask them, you share me data. Now that data should be authenticated, that data should be audited data. Okay. तो जिससे ऊपर से आपको पता चलेगा कि ये ब्रांड जो बात कर रहा है, अभी किसी भी ब्रांड का फ्रेंचाइजी ब्रोशर देखेंगे तो वो लोग लिखेंगे क्विक पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड मतलब आप 18 से 20 महीने में आपका पैसा वापस वो हो जाएगा, पेबैक हो जाएगा। बट तो एक्चुअल में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देन यू नीड टू असेस कि कौन कौन सा जो सपोर्ट है वो एज अ ब्रांड वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। देन यू गो एंड टॉक विद द एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजिंग आउटलेट। लेट्स से आपको कभी भी का फ्रेंचाइजी लेना है, देन यू गो विद द नियरेस्ट कभी भी आउटलेट नियर यू, वो जो ओनर है उनसे बात करो, उनसे समझो कि ब्रांड का कैसा सपोर्ट है, उनका रिटर्न कैसे हो रहा है, उनका बिजनेस कैसे चल रहा है। सो दिस आर दी सम पॉइंट्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस व्हिच यू नीड टू कंसीडर। उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप डायरेक्टली तो वो नहीं दे सकते, बट यू गो एंड आस्क विद द ब्रांड। आप कभी भी ब्रांड से मांगो कि बिफोर आई नीड टू इन्वेस्ट, आई नीड टू इवेल्युएट, आई नीड टू कंसल्ट माय चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड सी दैट वेदर माय इन्वेस्टमेंट इज वायबल और नॉट। सो आप वो मांगो। फिर उनका जो ड्राफ्ट फ्रेंचाइज एग्रीमेंट है वो आप देख लो एक बार, उसमें उनके साइड से क्या सपोर्ट है वो आपको पता चल जाएगा, आपका क्या रोल है वो आपको पता चल जाएगा। सो दिस आर द बेसिक पैरामीटर्स व्हिच यू नीड टू नो बिफोर गोइंग इनटू द फ्रेंचाइज। एक फ्रेंचाइज ब्रोशर है, दैट इज नॉट इनफ Correct. थिंग टू टेक अ डिसीजन। That Correct. is just a marketing material, that is just a brand material which you see. Correct. Right. One last question. Yes. What type of franchisee are more prevalent in food business? And second is any specific clauses which one needs to include in the agreement mandatorily? Okay, so first I will come into the which sectors are more, which franchises are prevalent in food, right? Food में हम देखें ना तो basically we can divide into the 3 major categories. So one is the cafe, fast moving cafe, मतलब like टी पोस्ट है, चाय सूटा बार हो गया, तो वो सारे कैफेज है वो काफी चल रहे हैं। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजी बोला ना, जैसे कि आपने एक मॉडल बताया, मॉडल्स ऑफ फ्रेंचाइजी, डिफरेंट मॉडल्स ऑफ फ्रेंचाइजी। ओके। सो कौन सा मॉडल चलता है? तो जनरली देयर इज अ फोफो एंड फोको, मेजरली इन द फूड बिजनेस, इन द फूड बिजनेस। yes, in food business majorly there is fofo and foco. Now you can see 80% brand going with fofo, franchise owned, franchise operated. That's why I said that if you are majorly looking that you can spend your entire time for the operations, then only you need to go with food and beverages, because वहां पे फोफो मॉडल ही चलता है, फ्रेंचाइज ओन्ड, फ्रेंचाइज ऑपरेटेड, ओनरशिप भी आपका रहेगा, ऑपरेशंस भी आपको ही मैनेज करना है। On the contrary, there are some brands which needs to जो कोई ब्रांड है जिनको उनका प्रीमियमनेस है, उनका क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, they are very much concerned, तो वो लोग फोफो में जाते ही नहीं है, they go into the फोको मॉडल। जैसे आई विल टेक एग्जांपल ऑफ निनीज किचन। निनीज किचन आपको पता होगा। सो निनीज किचन इज द ब्रांड, यू नो अबाउट द निनीज किचन? नहीं। Okay, so it is basically a bakery brand from Ahmedabad. So they just now started giving franchising, but they are going into the FOCO model only. तो उसमें they investment और ownership आपका रहेगा as a franchisee, आपका profit loss भी आपका रहेगा, but उसमें जो operations है that will entirely be managed by the company. जो निनीज किचन कंपनी है वही सारा operations manage करेंगे। कभी staffing का issue आया, कभी रॉ मटेरियल सप्लाई है, वो सारा है तो वो सारा कंपनी ही मैनेज करेगी, जिससे क्या है उनका एक जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रहेगा। करेक्ट। ऐसा कंपनी का मानना है। सो मेजरली फोफो वर्क्स, बट देयर आर फोको आल्सो। ओके। ओके। And second question about the terms which one should make sure to be included in agreement. Okay, so that is from the perspective of franchisor or franchisee. मतलब if I am like taking a franchisee. Okay. Yeah. As an investor, as an investor, like if I'm taking a franchisee, so to safeguard my money, my interest, what should the minimum conditions which should be included in the agreement? Right. So to safeguard your interest as a investor in the franchisee,
आपको क्या क्या चीजें एग्रीमेंट में कवर करनी चाहिए, राइट? दैट इज योर क्वेश्चन। Yes. यस, सो उसमें देखिए 2-3 पॉइंट्स रहते हैं। जैसे उसमें कई बार आप देखेंगे ना तो नो कंपटीशन क्लोज लगा देते हैं। जैसे आफ्टर टर्मिनेटिंग देयर फ्रेंचाइजी भी आप अगर वो सेम बिजनेस करना चाहते हैं तो वो नहीं कर पाएंगे। अब कई बार हमारा मोटिव ये होता है कि लेट्स से आपको फूड इंडस्ट्री में जाना है बट यू डोंट हैव द रिलेवेंट एक्सपर्टीज ऑफ गोइंग इनटू द Correct. फूड इंडस्ट्री। Correct. तो आप ऐसा सोचेंगे कि मैं किसी ब्रांड का फ्रेंचाइजी ले लेता हूँ 4-5 साल के लिए एंड देन आई विल स्टार्ट माय ओन बिजनेस। Correct. तो आपको एक तो ये इंश्योर करना है कि वो लोग अगर जो नॉन कॉम्पिटिशन क्लोज है वो लगा रहे हैं इवन आफ्टर टर्मिनेटिंग द एग्रीमेंट, तो आपको वो हटवा देना है। फिर उसके बाद Okay. दूसरा है कि आपको उनका जो रॉयल्टी कैलकुलेशन है, वो रॉयल्टी कैलकुलेशन कई बार कोई ब्रांड कैसा करती है कि कई बार वो लोग ग्रोस पे चार्ज करते हैं। फिर उसमें जो उनका रॉयल्टी कैलकुलेशन मेथड है वो आपको उनसे स्पेसिफाई कर लेना है। लेट्स Okay. से कई बार ऐसा होता है कि आपका ग्रोस सेल्स तो हो गया 1 लाख, बट उसमें से आपने 30,000 तो डिस्काउंट दिया था, तो कोई ऑफर चलाया था, कोई जोमेटो पे कमीशन वगैरह कटा, तो वो आपका हो गया नेट सेल्स तो आपका 70 ही बना। तो Correct. एक्चुअली रॉयल्टी शुड बी चार्ज ऑन दी नेट सेल्स, नॉट ऑन दी ग्रोस सेल्स। तो Okay. अगर आपका बिजनेस है उसमें वो लोग आपसे रॉयल्टी रहे, देन यू नीड टू आस्क देम कि आपको रॉयल्टी कौन से वे से आप कैलकुलेट कर रहे हैं। काइंडली या तो आप उसको एग्रीमेंट में मेंशन कर दे या तो सेपरेटली मेरे को बताइए कि आप रॉयल्टी कैसे चार्ज करेंगे। इफ पॉसिबल इट इज बेटर कि वो एग्रीमेंट में ही मेंशन करवा दिया जाए। Correct. फिर Okay. कई बार ऐसा होता है कि कोई ब्रांड है वो फ्रेंचाइज रिन्यूअल फीस के बारे में इनिशियली क्लेरिफाई नहीं करते हैं, बट ऐसा होता है कि एग्रीमेंट में ऐसा लिखा है कि 5 साल का फ्रेंचाइज है, राइट? अभी 5 साल के बाद आपको वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना है तो दे विल अगेन चार्ज सम अमाउंट ऑफ फीस फ्रॉम यू। तो आपको वो क्लेरिफाई कर देना है कि आपका रिन्यूअल चार्जेस क्या है और कितने साल बाद है। तो कई बार वो भी क्लेरिफिकेशन नहीं होता है। सो दिस आर द फ्यू पॉइंट्स व्हिच आई कैन रिकलेक्ट एट द मोमेंट एंड आई कैन गाइड यू कि आप ये चीज इनकॉर्पोरेट करवा सकते हैं अपने एग्रीमेंट में। Okay. सर आपने कुछ ऐसा इसका कोर्स किया है क्या, फ्रेंचाइजी एंड ब्रांडिंग का कुछ ऐसा? No, I have not done any course, but yes. So how I get into this? Yes. Yes. So this is the basic question, right? So basically, I'll tell you. आपने ठेका कॉफी का नाम सुना है? वो शार्क टैंक सीजन 1 में आया था and it is almost present everywhere in India now. Okay. So ठेका कॉफी इज अ कॉफी ब्रांड। जो उनका जो मॉडल है वो ऐसा है कि वो लोग कार्ट मॉडल पे काम करते हैं। So basically, I have worked as the finance head of Teka Coffee for 1 year. Okay. So I was the one amongst the 5 initial staff of them. So वहां से I learned about what is the market potential of franchising, and as and when we see that there are the businesses which are running into the traditional way, but as the India has a very large growth potential of franchising. So this is the entire I have developed myself from by studying and reading. So and there is no specific course available in fact on franchising. Okay. Yeah, that's what. But you Yes, have yes, yes. a really good knowledge and database with you for this particular field. So I must appreciate that. Yes, thank you so much. Yeah, that was my last question. Yes, I'm done with the questions. Okay, thank you. आई थिंक हर्ष यू आर द फर्स्ट सीए जिसका मैंने सुना है जो फ्रेंचाइजी में है. आई थिंक योर पार्टनर Shreyanshi has also taken the session on our platform. I think you both are business partners, right? Yes, definitely. Yeah. So I told her I really like the concept. I mean, you have exactly taken the right thing, and you have explored that there is no CA who is working in this field. Right, So correct. really appreciable. In fact, I would like to say there are many less franchise consultation company in India, and we are the only franchise consultant company which is run by a chartered accountant. Great. So Yes. that is a niche area for you and your business partner. Yes, exactly. अगर आप कुछ पार्टनर देख रहे हो तो मुझे कंसिडर कर लेना. Sure, definitely, ma'am. मुझे भी. Definitely, we can. If you want to have a franchisee IQ, then you can. Yes. Definitely, We can work on a global level as well as on all India level. Correct. Definitely, we will consider that. Yes. Okay. So yes, Any these more are queries from anyone?
Okay, so at last, just I would like to share my company profile with you, just to make you aware that how you can design your services. So just a minute. So this is my company profile. I will just quickly share with you. I will share this PDF file in the group. Yes. So we will this is our company overview. This is our founder's introduction. So we will move to the structuring of service. So now we have structured our service into the 4 phase. The first is franchise feasibility analysis, जिसमें हम basically business को evaluate करेंगे कि उनका business feasible है या नहीं franchising में जाने के लिए. Now second is franchise prime requirements, जिसमें हम लोग evaluate तो करेंगे ही उनका business, और इवेल्युएट करने के बाद उसमें जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड है फ्रेंचाइजी में जाने के लिए वो इम्प्लीमेंट करवा के उनका एग्रीमेंट है, उनका ब्रोशर है, उनका फाइनेंशियल मॉडल है, वो सब रेडी करके देंगे. नाउ नेक्स्ट इज फ्रेंचाइज रैपिड एक्सपेंशन, जिसमें हम लोग उनको सारे उनके जो मार्केटिंग है उनको देखेंगे, जैसे उनका एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी बना के दिया कि उनको कौन कौन से एरियाज में पहले जाना चाहिए, उनके लिए जो है वो लीड जनरेट करवा के दिया, उनके लिए फ्रेंचाइजी सेल करके दिया, दैट इज लीड कन्वर्जन. एंड लास्ट इज फ्रेंचाइज रैपिड एक्सपांड सॉरी यस सो लास्ट इज फ्रेंचाइज परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, जिसमें हमने बोला था कि जो केपीआई स्कोर कार्ड है, हेल्थ रिपोर्ट है, रेवेन्यू रिपोर्ट है, ऑपरेशनल ऑडिट्स है, वो सब करके देंगे. सो दिस इज हाउ वी हैव स्ट्रक्चर्ड आवर सर्विसेज. एंड लास्ट वन इज इन्वेस्ट स्मार्ट विथ फ्रेंचाइज आईक्यू. So this is the from the perspective of the investor who is investing into the franchising, जहां पे हम 2 सर्विस देते हैं, सिलेक्ट एंड सिक्योर एंड इन्वेस्ट सिक्योर. सिलेक्ट एंड सिक्योर में हम लोग आपको ब्रांड सिलेक्ट करके देंगे, आपको कौन से ब्रांड के साथ जाना चाहिए, और इन्वेस्ट एंड सिक्योर में आप लोग ब्रांड लेके आएंगे कि मेरे को ये ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेनी है, हम सिर्फ उनका ड्यू डिलिजेंस करके देंगे. So these are the basic things which we have structured our services into. I will share my company profile with you all. Yes, yes, it is much required. Yes. Yes, so this is the last thing which I would like to share. So इससे आपको पता चलेगा कि हम लोग क्या काम करते हैं, और आप लोगों को भी अगर जाना है तो उसको कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं सर्विसेज को. And yes, these are my contact details. You can follow me on social media and we can stay connected. We time and again keep posting on this topic related to franchising. Yes. So there is one appreciation from Swati. She has Yes. appreciated your PPT designing, which is very fabulous and very unique. Even I agree with the same. Yes. It was very colorful, and it was very interesting to look after the slides. Right. So I would just like to share one thing regarding this. So Is when it from Canva? Is it yes, from Canva? yes, Canva. Shreyanshi So must have made it. yes, Shreyanshi. So I would like to share that only that when I and Shreyanshi was discussing regarding presentation, so the first thought which came into our mind is that we don't want to keep it like a traditional, कि हमने एक डिजाइन बना दिया और सारे पेज पे वही डिजाइन को हम कंटिन्यू करेंगे, सिर्फ कंटेंट चेंज होगा. सो वी थॉट कि हम लोग अगर मॉडर्न एरिया ऑफ प्रैक्टिस में काम कर रहे थे, आवर पीपीटी शुड आल्सो लुक लाइक सम modern and not a traditional look. So the entire presentation is designed by me and Shreyanshi jointly in the Canva. And हमने सारे जो एक एक एलिमेंट्स है वो सारे हमने काफी सोच के प्लेस किए, that we don't repeat any elements and we keep it very attractive and colorful. Yes, it was Great, very good that great. you took that clips on as a bullets. That Yes, was very yes. very Yes, nice. yes. You can find many such elements in the PPT. I will share this presentation with you. Yes, it's And very in fact, the company profile which I will share with you, that also is entirely prepared by me and Shreyanshi in-house only. Nice. efforts can be seen, na? Really. Yes. Thank you so much. Lastly, I had raised the poll regarding the franchisee management by anybody. I have got 2 votes. One Okay. would be of Harsh, definitely. If anybody can share the experience of what they have done in franchisee success. I had actually done an audit of Pepperfry,
Okay. So it was a kind of an operational audit wherein Right. we had checked the profitability of their outlets. Okay. And Correct. based on that, we had suggested the closure of few outlets which were not, Profitable. Right. which were not Correct. profitable. Yeah. So Correct. it was from an audit point of view. राइट करेक्ट करेक्ट सो डेफिनेटली काफी सारी चीजें हैं ऐसी जो हम हमारे डेली प्रैक्टिस से ही लिंक कर सकते हैं बट वी जस्ट डोंट हैव दैट थॉट कि हम इसको इस तरह से भी लेके जा सकते हैं. Yes. Okay. राइट. Yeah, so thank you, Harsh. If no more queries are there, we can proceed with the formal vote of thanks. Shifali ma'am? Yes. Yeah. I would not be able to on my camera, but I would That's definitely okay. give the That's vote okay. of thanks for Yes. Harsh Rajani. Yeah, Okay. so it's my privilege to propose the vote of thanks on this wonderful occasion. And on behalf of Visionary Woman, I extend my heartfelt gratitude to everyone who has contributed towards the success of this event. First and foremost thing, I would like to express my sincere appreciation and gratitude to our speaker of the day, Mr. Harsh Rajani, in order to take time for gracing this occasion with his presence and for sharing his valuable insights on franchising models. Your expertise and detailed explanations have been truly enlightened us on the intricate workings and key considerations which are involved in these areas. And your words have truly inspired and motivated us. We look forward to future interactions and learning more from your expertise. Once again, thank you, Harsh, for the wonderful session and sharing your in depth knowledge in this franchising field, which is a very unique concept. Thank you so much to the all the participants for listening to me, and thank you Visionary One platform to provide me this opportunity to share my knowledge. It was a great privilege for me to share this knowledge on the platform. Thank you so much, Harsh. Thank you, everyone.